Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay. So let's start. Actually, yesterday my son was not keeping well and he requested that can you take the class next day? Not like that. Then in that case, I thought that case, since we have the opportunity that tomorrow morning, that is on Thursday morning, I don't have class. So the class can be taken on Thursday morning. So I accepted his request, but otherwise I don't want to change. Because normally the classes are there in the morning, evening. Changing the time schedule is very difficult. But since the opportunity was there, for that reason, I message to all of you. We will have the class on Thursday morning, that is tomorrow morning. Sorry for the inconvenience. I don't want that. Always the class should be in time. Okay. Sorry. So before proceeding, anybody has any specific query? Kaushik, Praveen, Prem, Ravis, Swati, and Ajay ji also. Sir, I have emailed you one query. You mailed you. Sorry. Yeah. Yes, yes. Let me open. Mm. Swati. Your email ID? Swati Ramesh.Shetty. Swati. Yeah, the first. Yes. Doubt on lease related question. Okay. I have mentioned my query in the attached file. Please help me to understand this question. I believe my understanding of the question is not correct. On 1st October 2014, Gamma began to lease a machine. The lease gave Gamma the sole right to direct the use of the machine and receive all the economic benefits arising from its use. So on 1st October, Gamma is lessee and they are taking one asset on lease. By taking the asset on lease, they will have the control over the asset. They can use the asset the way they like, and they will be getting all the economic benefits relating to the asset.
The lease was for a 5-year term with annual rental 2 lakh being payable in advance. So 2 lakh rent we need to pay at the beginning of every year. Annual rental 2 lakh payable in advance, not at the end of the year, at the beginning of the year. The first rental is on 1st October when we took the lease, and the final rental is due payment on October 2018. October 14 we pay, so 14 to 15. October 15 we pay 15 to 16. October 16 we pay 16 to 17. October 17 we pay 17 to 18. And October 18 we will pay last for 18 to 19. Every year beginning we will be paying the lease rent. The total estimated useful life of the machine on 1st October 2014 was 10 years. So the life is 10 years, but the lease term is 5 years. We will be depreciating based on the lease term or the useful life of the asset, whichever is lower. So the lease term is lower. There are no terms in the lease agreement that allow the lease to be extended beyond the 5-year term. So after 5 years, we are bound to return the assets to the lessor. The annual rate of interest implicit in the lease is 8%. That means present value calculation of interest will be at the rate of 8%. On 1st October, when the first rental was paid, Gamma debited 2 lakh to PL account, which they are doing wrong because the lease rent is not an expense. The depreciation and interest is an expense. The lease rent will be adjusted from the principal amount. Gamma has made no other entries regarding this lease in its draft financial statement. So they have recorded 2 lakh expense and they have not done anything else. So they have done wrong, which we need to rectify. 8% discount factor which may be relevant are as follows. The cumulative present value factor at the rate of 8%, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. Now, before going into your understanding, suppose I will say that the 2 lakh lease rent is at the end of every year. So every 2 lakh we need to bring present value. First year wala, second year wala, third year wala, fourth year wala, fifth year wala. But here the first 2 lakh you are paying now. It is already at present value. Just the balance 2 lakh you need to, which you pay 4 times, that you need to find out present value. So the factor we are going to use 3.312, not 3.993. 3.993 we will use when $1, $1 we are paying at the end of every year. So present value is coming 3.993. But out of the $1, first dollar we are paying now. And then the balance is 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. So we need to take the factor to 3.312. That is 2 lakh into 3.312. Say it is coming around 6,60,000 approx. And the first 2 lakh you are paying now, that is already present value. So 6,60,000 plus 2 lakh, it's coming 8,60,000. Whatever it will come. The first 2 lakh is already the present value. But the balance 2 lakh, which you will pay 4 times, so 2 lakh into 3.312 will be giving you approximately total value 8,60,000. What we should be doing? Whatever the present value of the lease payments, any other incidental expenditure which is not there, we record that as a right to use asset. There is no incidental expenditure, so 8,60,000 approx will become right to use asset. And that is the liability which you need to pay, present value of lease liability. That will be lease payable. That is 8,60,000 approx. Now, the assets 8,60,000 will be depreciated in 5 years. So depreciation in the current year, October to March, it is not entire 1 year. October to March, it is only 6 months. You will charge depreciation for 1 year, but the current year is only 6 months. So 8,60,000 divided by 5, 5-year lease, multiplied by 6 by 12, because 6 months depreciation will be whatever that you will calculate, you will charge to PL account, and the assets value in the balance sheet on 31st March 2015 will be 8,60,000 minus the 6 months depreciation, whatever figure will come. One story gone. Second story. The lease liability is 8,60,000 approx. Out of that, you will not calculate interest. First of all, you will pay 2 lakh now. So out of 8,60,000, 2 lakh payment to the lessee.
that does not include any interest, because today you are taking loan, today you are paying, then why there will be interest? So from 8,60,000 straight away 2 lakh gone. The balance left is 6,60,000. On the 6,60,000, the payment will be done now after 1 year. That is on 1st October 2015. But our year ending is 31st March 2015. So 6 months later. So we will calculate always interest for 1 year. But here the year ending is only 6 months. So we will calculate interest for the 6 months. On the 6,60,000 at the rate of 8% for 6 months. 6,60,000 into 8% into 6 by 12. There will be some interest amount coming. That interest amount you will debit in the PL account, and that interest amount will be added with the lease liability. That means in the balance sheet, the lease liability will be 6,60,000 plus 8% 6 months interest, and in the PL account that interest will be going. Now in the PL account you should be recording the interest, you should be recording the depreciation, but what you have done, you have recorded 2 lakh the payment as an expense. So the rectification in the PL account required, which is 2 lakh minus the depreciation minus the interest, whatever the difference portion you have debited in PL account expense, that you need to cancel. That is automatically become liability, because 2 lakh you are not showing as a liability. So balance will become liability. Whatever figure you are calculating, 6,60,000 plus 8% into 6 by 12, that is giving you that liability portion which you have recorded in PL account. So in PL account, only depreciation and interest, and the liability will be 6,60,000 plus 6 months interest. Now we discussed that whenever we prepare balance sheet, lease liability is need to be recorded in 2 parts: payable within 1 year, payable beyond 1 year. Whatever is payable within 1 year is a current liability, and whatever is payable beyond 1 year is a non-current liability. The interest which you have calculated for 6 months, October 14 to March 15, you are going to pay this interest in October 15. That is just after 31st March, 6 months later. So that interest is a current liability. You have not paid him, you have recorded is a current liability. But then you will pay after 6 months, from March 15 to October 15, you will pay the principal portion also. That principal portion will be what? Basically the interest you have calculated from October 14 to March 15. But when you pay in October 15, that will include interest of 1st April 2015 to October 2015, that interest also. Now, if I am taking loan from bank today and I will repay the loan after 10 years, will I record the interest of 10 years today? No. I will record interest of every year, every year. If it is not paid, it is a liability. But if the interest after 10 years, which will be arising, that cannot record it as a liability today. We are recording interest October to March 15. That is payable, not payable as a due date, but in accounts accrual. October to March 15, interest accrued, not paid, but that is a liability. But March 15 to October 15, the interest in the current year, it did not accrued. That I can't record as a liability. So when I will pay 2 lakh in October 15, I will pay current year 6 months interest. I will pay next year 6 months interest, and I will pay the principal. The principal is out of 6,60,000. Out of 6,60,000, whatever is payable should be recorded as a current liability. But when we are paying 2 lakh on 1st October 2015, that includes interest also of April to October 15. That is the same interest which we have calculated for 6 months. The same amount of interest is there in 2 lakh. You deduct from that 2 lakh, that interest amount. You are getting what? The principal portion which you will be paying on October 15, and the interest which is from October to March 15, that also included in that. Both are becoming current liability, because that you will pay within 1 year. So out of 6,60,000 plus 6 months interest, the amount which you will pay within 1 year is basically the interest of 6 months and plus the principal portion. That you will record under current liability,
balance will remain as a non-current liability payable after March 2020, payable after March 2016. You are preparing balance sheet on March 15. Whatever payable within 1 year till March 16 is a current liability, and the balance becomes non-current liability. That means here, the student generally will make a mistake in recording current and non-current liability because it's an advanced feature. And the second, the student may be doing the mistake here in present value calculation also, because generally in the problem, they give only one figure, present value factor 3.312. They are giving so many factor to make you confused. So the present value calculation may also be, the chances are that the student will be doing wrong. Now let's see what you have. I think these two are the mistakes which the student will be doing. My understanding by looking at the question in that the lease rental 2 lakh is payable in advance on October. Hence the carrying value of the right to use asset, as per my calculation, 2 lakh paid on 1st October. And then 2 lakh into 0.926. You are not understanding. These are cumulative figure. This is not discounting factor. This is cumulative figure. Discounting factor of second year, 1.783 minus 0.926. How come the discounting factor can be greater than 1? These are annuity factor. Annuity means first year discounting factor added in the second one. The second one is added in the third one. These are not, cannot be done. You can do 2 lakh into 1.783 minus 0.926. Then 2 lakh into 2.577 minus 1.783. They have written cumulative. This is not discounting factor. You understand? Got it, sir. Yes, Then yes, one sir. second. Got it now. Suppose you are doing some ceiling mistake. We are saying if the value today is 100, then the value after 1 year will be greater than 100, because today value is excluding interest, and the future value will be including interest. So when 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, you are paying 5 times. The value is 10 lakh. That you will pay after 1 year, 2 year, 3 year and all. So the present value will be less than 10 lakh. It cannot be greater than 10 lakh. Whenever I discuss this as a non-financial angle, 100 if I am depositing in bank, interest rate is 8%. Then after 1 year, it is 108. So 100 is the present value. 108 is the future value. The future value is including interest higher. The 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, you will pay lease rent, which is including interest. That is 10 lakh. So the present value cannot be greater than 10 lakh. Simple logic. So when you are saying 19 lakh, that's simply wrong. Maybe the figures calculation is wrong. But then the common concept, the present value will be less than the future value. The future value is 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, total 10 lakh. So the present value will be less than 10 lakh. Simple logic. मान लीजिए कुछ गलत भी कर रहे हैं. मान लीजिए in calculator you are doing 2 plus 2 5. So you know that the 2 plus 2 is 4 only. How come calculator can give 5? So presence of mind, when the future value is total 10 lakh, how can the present value will be greater than 10 lakh? That's impossible. Because from 10 lakh you are deducting interest. Then you are getting present value. So the present value is 862, which is less than 10 lakh, which is acceptable. But if it is 19 lakh, it is not acceptable at all. But then other than this mistake, there will be other mistake will be arising, which I said again, I am repeating. आपको ये बोलना है 8,62,000 आपका लीज लाइबिलिटी है, एसेट्स का वैल्यू है, राइट टू यूज एसेट. 8,64,000 में आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 5 एंड इंटू 6/12, 6 महीना का. नाउ 8,62,000 में से 2 लाख आपने अभी अभी पे कर दिया, वो गया, यानी कि लाइबिलिटी रिमेन इज 6,62,400. बट आपका करंट ईयर में 6 मंथ्स बाकी है. आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे, 6,62,400 इंटू 8% इंटू 6/12, कुछ आएगा अराउंड 32,000. सो टोटल लाइबिलिटी बन जाएगा 6,62,000 प्लस 32, मतलब मोटा मोटी 6,96,000 अप्रॉक्स. आप मान लीजिए एग्जाम में बोल दिए द लाइबिलिटी एट 31st March 696. इट्स करेक्ट फिगर, बट मार्क्स विल बी डिडक्टेड because that 696 need to be recorded current and non-current. You are standing on March 15. Whatever payable by March 16 is a current liability. Whatever payable beyond March 16 is a non-current. आपको मालूम है कि आपको 6,96,000 में से 2 लाख अभी अक्टूबर में देना है. तो कोई स्टूडेंट करेगा कि 6,96,000 में से 2 लाख करंट लाइबिलिटी, बैलेंस 4,96,000 नॉन करंट, वो भी रॉन्ग है.
That also is wrong. Because in 2 lakh which you will pay in October, that includes interest of April to October 2016, 15, which is not your accrual or due. आप लोन आज लोगे 50 साल का इंटरेस्ट अभी नहीं लिख दोगे, तो आप 2 लाख में नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी इंटरेस्ट दे रहे हो, विच इज अराउंड 32,000. 2 लाख में से उसको हटाइए. इफ यू डिडक्ट 32,000 इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 168. ये 168 में क्या है? जो करंट ईयर का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है, और आपका टोटल लाइबिलिटी क्या है? 696. तो 696 में से 1,68,000 बिकम्स करंट लाइबिलिटी एंड द बैलेंस नॉन करंट. जब स्टूडेंट वो लिखेगा तो डेफिनेटली आप मार्किंग गाइडलाइंस में देखेंगे नॉन करंट और करंट का फिगर सही लिखने का एक एक नंबर कम से कम है. तो इफ यू आर राइटिंग टोटल लाइबिलिटी करेक्ट बट नॉन करंट करंट रॉन्ग, 2 नंबर गया, 2 नंबर बेकाम का लॉस होएगा. मे बी वी विल पास द एग्जाम बट वी आर लूजिंग मार्क्स. दैट डिपेंड्स व्हाट मार्क्स दे आर एलोकेटिंग टू नॉन करंट करंट. और डेप्रिसिएशन इसके साथ में आपको बताना है, इन पीएल अकाउंट वी हैव रिकॉर्डेड 2 लाख, but the expense of depreciation and interest is 1 lakh something. Balance in the PL account will be eliminated. That is automatically becoming the liability. आपको PL से निकाल के वो खर्चा नहीं है, वो liability दिखाना है, जो कि हम लोग 6,96,000 में दिखा रहे हैं, वो भी लिखना है. वो भी नहीं लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट एक नंबर और काटेगा. यानी कि अगर ये 6-8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर लॉस हो जाएगा. अभी आप यहां से निकाल रहे हैं, तो यहां से निकालने से योर एसेट्स वैल्यू 19,19,000 इज रॉन्ग. सो इफ दे हैव से राइट टू यूज एसेट 1 मार्क, दैट गॉन. देन ये लीज लाइबिलिटी है, वो भी रॉन्ग. एक एक 2 नंबर गया. अब आप मान लीजिए इसके ऊपर कैलकुलेशन ठीक से बताते हैं कि 19,19,000 इंटरेस्ट इज दिस, डेप्रिसिएशन इज दिस, योर फिगर इज रॉन्ग. बट यू आर सेइंग डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स इज दिस एंड द इंटरेस्ट इज दिस. कैलकुलेशन इज रॉन्ग, बट उसका एक नंबर आपको मिल जाएगा फिर भी, बिकॉज दैट इज कॉल्ड ओन योर एरर रूल. ओन योर एरर रूल का मतलब एक फिगर के लिए पेनल्टी एक बार, 20 बार नहीं. योर राइट टू यूज एसेट इज रॉन्ग, योर लीज लाइबिलिटी इज रॉन्ग, 1-1-2 मार्क्स गॉन, बिकॉज वो गलत है. लेकिन उसके बेसिस पे द एक्सप्लेनेशन डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ्स, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर 6 मंथ्स, आपको वहां पर 1 या 2 नंबर मिल जाएगा. फिर आप आगे जाते हैं, आप अगर नहीं बताते कि पीएल अकाउंट में ये गड़बड़ी है, उसको ऐसे ठीक करना, उसका नंबर गया. फिर आप नहीं बताते हैं कि करंट नॉन करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप ऐसे होएगा, उसका भी नंबर गया. यानी कि 6-8 नंबर से मिलेगा केवल एक नंबर. देयर इज नो पार्शियलिटी. व्हाटएवर द एग्जामिनर को गाइडेंस दिया गया है कि स्टूडेंट को नंबर कैसे देना है, कौन कौन सा स्टेप पे, जो जो राइट है नंबर मिलते जाएगा. तो यहां पर ये गलत होने से मोटा मोटी टोटल 6 to 8 मार्क्स में एक नंबर मिलेगा. वो भी अगर आप ठीक से डेप्रिसिएशन ये सब बता रहे हैं. आप उसमें भी डेप्रिसिएशन 1 साल का बता रहे हैं 6 मंथ्स के बजाय, दैट ऑल्सो गॉन. सो इंटायर 6 to 8 मार्क्स चला जाएगा. समटाइम्स स्टूडेंट डू मिस्टेक, दे थिंक दैट दे विल फेल द एग्जाम, बट फिर भी वो पास हो जाते हैं. खासकर इट हैपेंस इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट. रीजन इज व्हाट? अकाउंट्स इज नॉट मैथ्स. रॉन्ग हो गया तो 0. Whatever the steps you are doing correct, marks are allotted on that. तो आपका 19,19,000 रॉन्ग है, लेकिन आगे डेप्रिसिएशन ये सब बताने का तरीका सही है. आगे पीएल अकाउंट में गलत फिगर लिखा बताने का, तो आपका कॉन्सेप्ट तो है ना, गलत तो नहीं है. उसके लिए तो 1-2 नंबर मिलेगा. जो जो आप पोर्शन राइट करेंगे नंबर उसके ऊपर है. तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं वी विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, बट वहां पर आपको मार्क्स मिल जाता है. आपको लगता है एग्जामिनर पागल है. कभी कभी उल्टा लगता है, आपको लगता है मेरा तो आना चाहिए 70 और 50 भी नहीं आता, तो भी गड़बड़ लगता है कि एग्जामिनर मेरे को नंबर नहीं दिया. ऐसा कुछ नहीं है. केवल बैलेंस शीट मिलने से नंबर नहीं. बैलेंस शीट मिल भी गया और आपका सारा एडजस्टमेंट रॉन्ग है, आप सोचेंगे बैलेंस शीट एग्जाम में मिला के आया था, 20 में 20, 25 मार्क्स से 10, 12, 15 तो मिलेगा ही, बट एडजस्टमेंट कोई भी राइट नहीं, तो कोई भी जगह तो मार्क्स मिल ही नहीं रहा है ना. खाली बैलेंस शीट मिलाने के लिए वो लोग थोड़ी ना बैठे. When I will give you marks, I need to have the marking guidelines कि एक एक 2-2 नंबर कहां कहां देना है. I will be able to give you marks only that. अगर आप कोई जगह मार्किंग गाइडलाइंस नहीं, आप मेरे को पूछेंगे सर मेरे को कितना नंबर मिलेगा, मैं बता नहीं पाऊंगा. बिकॉज एग्जामिनर हेड होते हैं 10-12 लोग, वो लोग हर एक स्टेप डिसाइड करते हैं स्टूडेंट को मार्क्स कहां दिया जाएगा. फिर जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होता है. आई एम जस्ट सिंस एग्जाम इज कमिंग,
फॉर दैट रीजन आई एम कम्युनिकेटिंग कि मार्किंग होता कैसे। और थोड़ा सा कॉमन सेंस श्वेता, स्वाति, कि 10 लाख प्रेजेंट वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10 लाख। आप कुछ भी करिए, लेकिन दिमाग अगर ठीक से सही है तो बहुत सारा राइट कर देंगे आप। मे बी पूरा सम राइट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट करेक्ट। तो ये आंसर लिखा हुआ है। Under the IFRS 16, lessee need to create a right to use asset and lease liability. Explanation of the principal 1 mark. मतलब आप मान लीजिए कैलकुलेशन खाली दिखा रहे हैं और ऊपर से आप लीज में राइट टू यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी क्या होता नहीं बता रहे। जिसका फ्री का नंबर था वो गया। When you are looking at the model answer, you need to see that maybe your calculation is wrong, but the examiner is saying that student is explaining what is right to use asset, what is a lease liability, then also explanation of the principal 1 mark. Free का 1 number मिलता वो भी गया, क्योंकि suppose in the answer you are not writing anything, maybe you are thinking, but I cannot see that you are explaining as per IFRS 16 what is right to use asset, what is lease liability, वो भी नहीं है, जिसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। The initial carrying amount, assets, and the lease liability will be present value of the lease payments not yet paid using the rate of interest implicit in the lease with the right to use asset adjusted for the initial payment of 2 लाख। कि 2 लाख तो आप तुरंत तुरंत दे रहे हैं ना, तो 2 लाख को अलग से लिखिए और बैलेंस जो 4 बार देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। सो दैट इज कमिंग 6,62,400। नीचे और जाएंगे तो 6,62,400 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट which will be coming approximately 8% से exactly 32 नहीं आएगा, कुछ 25-30,000 आएगा। So the total liability becomes 6,92,000 approx. But break up 692 का current non-current. Yes, Mr. Anup. 692 में 2 lakh you are going to pay within 6 months, within 1 year current, लेकिन 2 lakh current liability नहीं है। 2 lakh के अंदर you are paying interest of 30,000 approx from April to October. Delete that. 2 lakh minus interest of April to October 6 months will be giving you around 25-30, तो balance बचेगा 170 करीब। So out of 692, 1,70,000 is a current liability and balance becomes non-current. और depreciation लिखना है कि 8,62,400 into divided by 5 into 6 by 12 current year depreciation. So नीचे लिखना है कि PL account में depreciation and interest will be this, but we have recorded 2 lakh that need to be eliminated, that is already adjusted in the lease liability. वो PL account से निकालना है। इतना बात लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। हर जगह एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन ही लिखते जाइए, उसका कोई फ्री नंबर होगा सो तो मिले। कैलकुलेशन का मार्क्स अगर कट रहा है, अगर स्टूडेंट सोचे मेरे को पास होना है, तो अगर वो एक्सप्लेनेशन भी ठीक थे, अब एक्सप्लेनेशन ये नहीं 2 लाइन लिखना 20 लाइन लिख रहे हैं, पूरा लीजिंग चैप्टर का है, नॉट दैट। जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज राइट टू यूज एसेट एंड लीज लाइबिलिटी, कैसे निकाला जाता है, उसका भी तो नंबर है। आप कैलकुलेशन रॉन्ग भी कर रहे हैं तो भी नंबर 6 में से हाउ मच मार्क्स, द क्वेश्चन इज 9 मार्क्स। अगर आप जो कॉमन सेंस लगाते वो भी लगा देंगे 9 नंबर में 3-4 नंबर फिर भी मिल जाएगा, इवन दो ऑल द कैलकुलेशन आर रॉन्ग। सो वी कैन इजिली पास द एग्जाम, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग वी नीड टू फोकस ऑन पासिंग द एग्जाम। नॉलेज चल रहा है, बट अब मेरा और आपका फोकस केवल एग्जाम में पास करना है, कोई हाल में हमें फेल नहीं होना है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्वाति जी। ओके, नाउ Sure, sir. नो प्रॉब्लम, कूल। Then what is other query? We cannot wait for everybody thinking, asking यार फटाफट बोलना यार, जो क्वेरी है सिली है तो भी क्या हुआ, जो क्वेरी होगा वही पूछेंगे, नहीं मेरे से डॉक्टर हूं मैं आपका, मरीज को तो बताना पड़ेगा ना प्रॉब्लम क्या है। माई सन हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे मॉर्निंग, वंस ही गॉट अप ही सेइंग पेट दुख रहा है। अब मालूम नहीं है दुख रहा है कि नहीं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिम, ही डोंट से लाई, बट गया नहीं। तो अगर वो पेट बताएगा नहीं तो डॉक्टर दवाई कैसे देगा। तो आपको जो प्रॉब्लम आप बोलेंगे नहीं, हम कैसे बोलेंगे, हम बैठे तो नहीं रहेंगे। आपको जो डाउट आप पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आई एम वेटिंग फॉर फर्दर 30 seconds if anybody has any specific query. रावेश जी, अजय जी,
Anything to ask for the time being? हम लोग अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर देंगे, नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। मंडे को क्लास में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल जो है उसको डिस्कस करेंगे, आधा घंटा में भी एट द बिगिनिंग एट द एंड। और मंडे से मॉक पेपर्स चालू कर देंगे सॉल्व करना क्लास में। कोई क्लास में मैं कोई पेपर कराऊंगा जो आईएफआरएस में आया है, कोई क्लास में कराऊंगा जो एसबीआर में आया है। और मंडे और वेनेसडे को जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत बाकी है साथ साथ वो कंप्लीट करेंगे और मॉक पेपर्स भी करेंगे। तो आज डेट है 16, सो नेक्स्ट वीक वेनेसडे होगा 22, ठीक है। यानी कि 2 क्लासेस में मॉक पेपर भी करेंगे और साथ साथ जो बैलेंस पोर्शन बाकी है वो थ्योरी वाइज कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट वीक जाएंगे मंडे वेनेसडे फिर से, तो आएगा 29th, वहां पर भी मॉक पेपर्स करेंगे और वहां पर भी अगर कुछ इधर उधर बाकी है डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे। मतलब 4 क्लास मंडे वेनेसडे रिवीजन करेंगे थ्रू द मॉक पेपर्स और थोड़ा बहुत इधर उधर जो थ्योरी बाकी है वो डील करेंगे। 30th मई को क्या पड़ेगा? थर्सडे, जैसे आज है। सो 30th मई को आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में क्या होगा? आपको सुबह पहले 7 बजे 7:30 क्लास में फिक्स कर लेंगे, आपको एक मॉक टेस्ट मेल किया जाएगा। आईएफआरएस स्टूडेंट का टेस्ट अलग रहेगा, एसबीआर का अलग रहेगा। जैसा जिसका पेपर है वैसा टेस्ट। वो टेस्ट का आंसर आपको 3 घंटा में लिख कर देना है उसी टाइम पे, बाद में लिखना अलाउड नहीं, बिकॉज आई एम गिविंग इन एडवांस इंफॉर्मेशन कि 30th मई को मॉर्निंग में सुबह पहले टेस्ट होगा, कोई क्लास नहीं है। आपको 7 बजे मेल जाएगा एक मॉक टेस्ट, वो टेस्ट का आंसर आपको 3 घंटे में सबमिट करना है। जेन्युइनिटी मेंटेन करना है कि आप कोई पेन पे माने कुछ भी कोई बुक्स वगैरह नहीं खोलेंगे। आंसर आपको लिखना है वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, नॉर्मल वर्ड एक्सेल, जो सॉफ्टवेयर नहीं, नॉर्मल। अगर थ्योरी है आप वर्ड में लिखिए, अगर कैलकुलेशन एक्सेल में लिखिए, इजी रहेगा। कैलकुलेशन में सिंपल कैलकुलेशन कर पाएंगे एक्सेल में। और आपको 30th को उसको 7 o'clock अगर मैं देता हूं 10 o'clock सबमिट करना है। बाद में सबमिट करने से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम होता है, जिस दिन आपका एग्जाम आप बोलेंगे मैं 2 दिन बाद दूंगा, नहीं होएगा। वैसे ही उसका चेकिंग करके मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको फीडबैक दूंगा। और उसके अलावा आपको आइदर 30th में और मे बी बाई 1st और 2nd ऑफ जून मोटा मोटी 2 पेपर मन से सॉल्व करना है। एसबीआर वाला अपना इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, 2 पेपर सॉल्व करेगा 3-3 घंटे में। और आईएफआरएस वाला अपने उसके एग्जाम है, सारा पेपर वहां से एक साथ मत सॉल्व कर लीजिए। आईएफआरएस वाला 2 छोड़ दीजिए कि 2 हम सॉल्व करेंगे 3-3 घंटे में एक साथ एग्जाम सोचकर। कब आपको करना है मेरे हिसाब से? सपोज यू कैन गिव ऑन पर्सनल 1 टेस्ट ऑन 25th ऑफ मई, एक टेस्ट 25 तारीख को दे लीजिए, दूसरा टेस्ट आप दीजिए 2nd ऑफ जून को। क्लास का 30th को टेस्ट होने के बाद 2nd ऑफ जून को एक टारगेट करिए कि मेरे को एक और टेस्ट देना है। जब आप 25th को 3 घंटा में एक टेस्ट देंगे, ऐसा सोचकर कि एग्जाम है, कुछ देखना नहीं है, ऑन स्क्रीन आंसर लिखना है इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद 26th और 27th को जो टेस्ट आपने दिया खुद से, उसके बेसिस पे आप मॉडल आंसर से इवेल्युएट करिए कहां कहां गलती हो रही है। लाइक स्वाति हैज गिवन दिस और स्वाति ने रॉन्ग किया, सी हैज डन रॉन्ग मिस्टेक्स रिलेटिंग टू लीज अकाउंटिंग, तो उसको दिखेगा कहां कहां गलती हुआ, मॉडल आंसर पढ़ के उनको रिवाइज करिए। फॉर 2-3 days डू रिवीजन based on your test given, based on your weak areas, revise the stuff from the recording class, from the stuff which recording करना मुश्किल होएगा। अब आप रिकॉर्डिंग करेंगे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, यू कांट डू रिकॉर्डिंग। नोट्स से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर फिर भी लगता है कि रिकॉर्डिंग करना जरूरी है तो आप वो वीडियो खोलकर स्पीड बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, सो दैट यू कैन डू द रिवीजन इन 2-3 days। मतलब 25 तारीख को एक आपने मॉक टेस्ट खुद से दिया, 2 से 3 दिन 26, 27, 28 आपने उसके बेसिस पे रिवीजन किया, इवैल्यूएट करके अपने आप को ठीक किया। फिर मैंने 30 तारीख को टेस्ट लिया, फिर उसके बेसिस पे जो मैं मार्क्स वगैरह दूंगा, और आपको पता ही है क्या क्या गलती है, बिकॉज मॉडल आंसर तो मैं 10 बजे ही दे दूंगा। 30th को मॉर्निंग में टेस्ट लिया, 10 बजे मैं आपको मॉडल आंसर दे दूंगा। उसके बेसिस पे फिर से 2-3 दिन
31st, 1st, 2nd रिवाइज करिए, अपना इंप्रूवमेंट करिए, फिर 2 तारीख को टेस्ट दीजिए, 2 तारीख के बाद फिर से 2-3 दिन रिवीजन करिए टेस्ट देने के बाद, यानी कि हर बार टेस्ट करने के बाद अपना वीक एरियाज पे वर्क करिए, मॉडल आंसर से इवैल्यूएट करिए, उनको रिवाइज करिए और एग्जाम में जाइए. इफ यू डू दिस, मे बी यू आर नॉट ब्रिलियंट, मे बी यू आर एवरेज, मे बी योर स्टडी इज नॉट परफेक्ट, स्टिल यू विल पास द एग्जाम. SBR, IFRS दोनों. होता क्या है, when I am saying this, normally just less than 5% do that. उनका बोलने का होता है सर मेरा रिवीजन बाकी है, तो वो टॉपिक वाइज ही पढ़ते रहते हैं, नॉन करेंट, IS 38, 36, लीजिंग, रेवेन्यू रिकग्निशन, IFRS 2, वो टॉपिक वाइज ही स्टडी कर रहे हैं. और वो एग्जाम के दिन जाते जाते भी एक तो भी मॉक पेपर नहीं किया, क्लास में टेस्ट लिए वो भी नहीं दिया, खुद से 2 बोला था वो भी नहीं किया, टॉपिक वाइज पढ़ा है. लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सभी एक साथ मिला के, और आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइम मैनेजमेंट ये सब कुछ तैयार नहीं है, पढ़े हैं आप, लेकिन आप एग्जाम पास होने के लिए मटेरियल नहीं बने. एग्जाम में आप पेपर देंगे, ज्यादातर चांस है कि आपका 100 नंबर में 20-30 नंबर छूट ही जाएगा, तो 70 नंबर में, 80 नंबर में 50 नंबर तो आने वाला नहीं. Because those who are not able to complete the paper, we understand that they cannot pass. Simple logic, whatever you can say, but pass नहीं होंगे. और अगर 100 नंबर कर भी लिए तो उनका मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होएगा, so it will be difficult to score 50 marks. फेल होने वाला सारा वही लोग होता है जो पढ़ रहे हैं लेकिन टॉपिक वाइज ही पढ़े जा रहे हैं, उनको एक साथ एक बार में सारा IS IFRS का मॉक पेपर करना ही नहीं है, तो उनका पास होना मुश्किल है. और अगर कोई स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई नहीं किया है ठीक से, उसको भी मालूम है, और फिर भी ये जो मैं बोल रहा हूं वो कर लेता है, फिर भी पास हो जाएगा. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल. स्टडी इज अ डिफरेंट थिंग, पासिंग द एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मोर एंड मोर, but still they are failing the exams, not only ACC, any exams. But there are students who are studying less, but still they are passing the exam because they are exam material. They know that how to tackle the 3 hours in the exam that you need to build up in these coming 15-20 days. आप अगर वो बिल्टअप नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास होना मुश्किल है. और उसको बिल्टअप करने का एक ही तरीका है जो मैंने बोल दिया, 20 दिन पहले मैंने बोल दिया है, और आगे मैं फिर बार बार बोलूंगा, लेकिन एक बार में बोल दिया. आप अपना रिवीजन टॉपिक वाइज 20 तारीख तक ही करिए. 20 तारीख के बाद टॉपिक वाइज रिवीजन खत्म. सीधा सीधी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन खोलिए, सॉल्व करिए, जो आता है वो सॉल्व करिए. अभी 3 घंटा में पेपर नहीं दे रहे, कोई भी पेपर निकाल के यू हैव हाफ एन आवर, 1 आवर, सीधा उसको सॉल्व करिए. नहीं हो रहा है तभी भी सॉल्व करिए, फिर मॉडल आंसर देखिए, फिर उसके बाद रिवीजन करिए. ऐसे अब पढ़ने अब लग जाइए. टॉपिक वाइज स्टडी अब संभव नहीं है. होता तो फिर हम क्यों सिलेबस खत्म करते. आप बोलेंगे सीए वगैरह में सिलेबस 3 महीना पहले खत्म होता था. सीए में आपका ऑडिट है, लॉ है, अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्ट है. तो कोई भी टीचर अगर पहले तो आप सारा चीज रिवाइज कैसे करोगे. यहाँ पर आप केवल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिलेबस 3 महीना पहले खत्म होता है. और वैसा कुछ चाहिए तो जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्जाम देगा सब रिकॉर्डिंग कर लो जून में खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन करते रहना. दिस इज नॉट द वे दैट वी कैन अप्रोच इंटरनेशनल एग्जाम. दिस इज सब्जेक्ट वाइज एग्जाम. You will study the subject in 3 months, do the revision, do the mock papers and then give the exam. यही सिस्टम है इंटरनेशनल कोर्स. इसको इंडियन कोर्स से नहीं मिलाएंगे. तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बस लास्ट वाला पोर्शन को छोड़ेंगे नहीं. Whatever I said need to follow if you want to pass the exam. आप मेरे को जब भी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मैं यही जवाब देने वाला हूं. आप लाइव क्लास में हैं तो सुने हैं, रिकॉर्डिंग है तो मैं मान रहा हूं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बात मान रहे हैं. मैं आपकी जगह होता मेरे को यही करना पड़ता. इफ आई वांट टू पास द एग्जाम आई नीड टू सॉल्व 3 मॉक पेपर्स एंड नाउ आफ्टर 2-3 days आई कांट डू टॉपिक वाइज स्टडी. आई नीड टू स्टडी एवरीथिंग ऑन द इंस्टीट्यूट स्क्रीन. ये क्वेश्चन, ये IAS, ये IFRS ऐसे साथ साथ मिला के पढ़ने से मेरा जो डर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होएगा, रिवीजन अच्छे से होएगा, एंड आई विल बिकम अ पर्सन हु कैन इजीली पास द एग्जाम. बिकॉज मेरे हिसाब से सभी को, कोई भी स्टूडेंट है, सबको केवल एक ही बात सोचना, एग्जाम में पास होना है बस.
एनी हाउ, हुक और क्रुक, वेदर मेरा तबीयत खराब हो, बुखार हो जाए, पैर टूट जाए, एग्जाम में पास होना है, होना पड़ेगा। बोलेगा ये तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर को लाइट करने के लिए एक बार सोचिए, अगर हम एग्जाम देते हैं, फेल हो गए, क्या होगा? जिंदगी उजड़ जाएगा? कुछ नहीं होएगा। वापिस 6 महीना बाद एग्जाम है, एसबीआर का एग्जाम वापिस 3 महीना बाद है, दे लेंगे, क्या होगा? थोड़ा सा अपने आप को लाइट भी करिए। एग्जाम फोबिया, एग्जाम प्रेशर विल अफेक्ट योर नॉर्मल प्रोसेस। जिंदगी एग्जाम नहीं है। एग्जाम में फेल होने से जिंदगी में कुछ नुकसान नहीं है, खाली थोड़ा सा टाइम और थोड़ा पैसा। एग्जाम फीस फिर से देना होगा, और टाइम अगर आईएफआरएस है 6 महीना थोड़ा वेस्ट हो गया, और अगर एसबीआर है 3 महीना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट हुआ होगा गलत डिसीजन लेने से, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा अपने आप को लाइट भी करिए कि एग्जाम पास होना और फेल होना इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। इट्स नॉट एंड, वो जस्ट एक एग्जाम है। फेल होने से कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। कोई बात नहीं है, 2-3 महीना बाद पास हो जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा लाइट भी करिए, बिकॉज इट इज एसेंशियल। वी डोंट टेक प्रेशर सो मच, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, एंड वी आर नॉट एबल टू बिहेव नॉर्मली, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आखिरी बात, अगर एग्जाम आपका 6 तारीख को है, 7 को है, मालूम नहीं है, जितना भी तारीख को है, उसकी पहला वाला दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। कल एग्जाम है, आज रात को 2 बजे 3 बजे तक जगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे आज ही सारा पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से भी पढ़े हैं, खराब से, लास्ट दिन कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा रिलैक्स रहिए, सोइए, अच्छा से सो के नींद लेकर, अच्छा से अपना पूरा रेस्ट करके एग्जाम देने जाएंगे, सो दैट यू आर इन जोश, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। आखिरी दिन सर सारा पढ़ाई नहीं होता है, दैट्स। दंगल मूवी देख करके जाएं सर। जाइए सर, जरूर, एक दो। माने मेरा ये बोलने का मतलब है, दोनों बात ही सोचिए। एक सोचिए कि मेरे को पास ही होना है, हम कैसे फेल हो सकते हैं, हम तो इतने बुद्धिमान है यार, हाउ कैन आई फेल द एग्जाम। दूसरा, अपने आप को रिलैक्स भी करिए कि भाई फेल हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होएगा। मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ बच्चा उच्चा सब वैसे ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी पास फेल नहीं है, जिंदगी उससे बहुत ऊपर है। हमको ये थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करना है, बिकॉज नहीं तो हम ऑपरेट नहीं कर पाते नॉर्मली। दोनों चीज जरूरत है। इतना सारा एग्जाम मैंने दिया इसलिए बता रहा हूं। सीए का 20 पेपर का एग्जाम, ग्रुप वाइज ही बोल लीजिए। सीएमए का 20 पेपर का एग्जाम, सीएमए इंडिया। सीएस का 20 पेपर का एग्जाम, सीमा का एग्जाम्स, सीएफए इक्फा यूनिवर्सिटी का एग्जाम। कम से कम हाफ सेंचुरी तो मारा होएगा यार। तो एग्जाम दे दे के ये समझ में आ गया कि एग्जाम को पास कैसे किया जाता है। पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन केवल स्टडी के ऊपर एग्जाम पास कभी नहीं होता। वो करेज, वो जोश, वो जुनून, वो समझने का तरीका कि एग्जाम में परफॉर्म कैसे करेंगे, ऑन दैट बेसिस एग्जाम्स आर पास्ड। रैंक उन तो कभी नहीं आता था यार, इतना ब्रिलियंट था ही नहीं। खाली एक सीएमए फाइनल में इतना कम लोग को पास करता था, कुछ रैंक आ गया, नहीं तो जीवन में कभी कोई रैंक नहीं आया। पास हो जाते थे कि भाई एग्जाम दिया पास हो गए। पास क्या करता था, जैसे एग्जाम दिया, जितना भी मंदिर है कलकत्ता में, 7-8 मंदिर धूप जने हैं, जैसे कि भगवान पास कर देगा। इलॉजिकल। एंड नाउ आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट सेइंग कि गॉड को नहीं भजना है, भगवान को नहीं भजना है, अल्लाह को नहीं भजना है, जरूर भजना है भाई, कौन मना कर रहे। बट आपका अल्लाह वहां जाकर कॉपी में आंसर नहीं लिख रहा है, आपको लिखना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सो मैं नहीं बोल रहा वी शुड नॉट बी रिलीजियस, वी शुड नॉट बी प्रेइंग एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली, बिकॉज 5% इज लक, बट 95% आपका एफर्ट्स है। तो हमारे एग्जाम के बाद कलकत्ता में काली घाट का मंदिर है, वहां जाते थे, लाइन लगा के वहां मंदिर में जा रहा है, जैसे आज ही पास हो जाएंगे। डोंट नो यार। सो आई मीन टू से दैट आप जो वो सब सुपरस्टिशन है वो भी करिए, बट लॉजिक सोचिए कि पास तब होंगे जब आप ठीक से राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट करेंगे। रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट करने से पास नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई।